बेटा लिखना शुरू करें। पार्ट 1 में जो है इस लेक्चर के हमने आपको वो पढ़ा दिया था, क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव को, और लिखवाया नहीं था। अच्छा, इसको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव को पहले लिख लेते हैं 2 मिनट के अंदर। उसके बाद इसके आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की बुनियादी पे 5 कंडीशंस होती हैं जिसको हम लिखने के बाद क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की या इंटरफेरेंस ऑफ वेव की डेफिनेशन लिख लें। सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, superposition of two waves in which superposition of two waves in which superposition of two waves in which they enhance, e से लिखेंगे enhance, बढ़ना ज्यादा हो जाना। superposition of two waves in which superposition of two waves in which they enhance or destroy their effects, superposition of two waves in which they enhance, superposition of two waves in which they enhance or destroy their effects, or destroy their effects, superposition of two waves in which they enhance or destroy their effects, or destroy their effects is called, or destroy their effects, it's called interference of waves, interference of light waves। तो सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स वहां पे लिखना चाहिए। फिर हमें अगर लाइट वेव्स के मुताबिक बात करेंगे तो वहां पे आ जाएगा सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स, ठीक है ना। तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव भी लिख सकते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स भी लिख सकते हैं। लिख लो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स इज नोन एज, ये इज कॉल्ड, क्या लिखा है एंड में, इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। लिख लें यहां तक, फुल स्टॉप डाल के लिखो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। नंबर 1 पे लिखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, नंबर 2 पे लिखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये सब कल मैं समझा चुका हूं, एक्सप्लेन कल कर दिया था मैंने। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, there are two types of interference, number 1 constructive interference, number 2 destructive interference। constructive interference, number 2 पे लिखो destructive interference। there are two types of interference, there are two types of interference, number 1 constructive interference, number 2 destructive interference। अब constructive interference की हेडिंग डाल दीजिए, अब हेडिंग डाल दीजिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हेडिंग डाल दीजिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हेडिंग डाल दीजिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लिखो इफ क्रस्ट ऑफ वन वेव, इफ क्रस्ट ऑफ, क्रस्ट CREST, ठीक है, ये स्पेलिंग है, कुछ और मत लिख दीजिएगा। इफ क्रस्ट ऑफ वन वेव मीट्स विद द, इफ क्रस्ट ऑफ वन वेव मीट्स विद द, मीट्स MEETS, मिलना, मीट करना। इफ क्रस्ट ऑफ वन वेव मीट्स विद द, इफ क्रस्ट ऑफ वन वेव मीट्स विद द क्रस्ट ऑफ, if crust of one wave meets with the crust of other wave, if crust of one wave, if crust of one wave meets with the crust of other wave, and trough of one wave meets with the trough of other wave, TROUGH, if crust of one wave meets with the crust of other wave, and trough of one wave meets with the trough of one wave meets with the trough of other wave, trough of one wave meets with the trough of other wave, then resultant wave increases, then resultant wave increases, then resultant wave increases, then resultant wave increases, and this is called constructive interference।
Resultant wave increases and it is called constructive interference. It is called constructive interference. देखिए अगली हेडिंग डाल लो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. नहीं नहीं, हेडिंग डाल दीजिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के डाल के लिखिए इफ क्रस्ट ऑफ वन वेव मीट्स विद द ट्रफ ऑफ अदर वेव, if crust of one wave meets with the trough of other wave, if crust of one wave meets with the trough of other wave and trough of one wave meets with the and trough of one wave meets with the trough of one wave meets with the crust of other wave, trough of one wave meets with the crust of other wave, trough of other wave, then resultant wave decreases, then resultant wave लिखिए यहां तक, crust of one wave meets with the trough of other wave and trough of one wave meets with the crust of other wave, then resultant wave will destroy, and it is called, then resultant wave will destroy and it is called destructive interference, and it is called destructive interference, and this is called it is called destructive interference. समझ में आ गई बात? इसके बाद जल्दी से ये डायग्राम बनाओ और नीचे हेडिंग डाल दो कंडीशंस. कौन सी हेडिंग डालेगी? कंडीशंस. जल्दी से राइट डाउन कीजिए बेटा. कंडीशंस की हेडिंग डाल दी. अब कंडीशन सुनो जरा तवज्जो के साथ. देखो इसकी बुनियादी तौर पे 5 कंडीशंस हैं जिनको बैक टू बैक हम क्या करेंगे, समझेंगे. अब पहले इसको समझ लो, फिर मैं लिखवा दूंगा 2 मिनट के अंदर. लिखो, बल्कि लिख लो हाथ के हाथ. देखो, फॉलोइंग आर द मेन कंडीशंस ऑफ interference of light waves. Following are the main conditions of interference of light waves. Following are the main conditions of interference of light waves. Following are the main conditions of interference of light waves. अब पहला जरा सुनो. लाइट जो है ना, अच्छा इंटरफेरेंस का मतलब पता क्या होता है? मुदाखलत. एक, अच्छा हम क्या अपनी जिंदगी में हर किसी को इंटरफेयर करने देते हैं? नहीं करने देते ना. बुरा लगता है मैं अगर बिलफर्ज हर कोई करे, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को भी नहीं करने देते. हम चाहते हैं कि कोई हमारी जिंदगी में इंटरफेयर करे, और कभी कभी हम कुछ लोगों के लिए हम चाहते हैं कि वो हमारी जिंदगी में क्या करें? इंटरफेयर करें. ये हम चाहते हैं. होता है नॉर्मल तौर पे. आप मिसाल के तौर पे कजन्स में होता है, बहन भाइयों में होता है, स्पेशली बच्चों का अपने वालिदैन के साथ होता है, पेरेंट्स के लिए होता है. हमेशा पॉजिटिव सोचा करो. हंसने लग जाते हो, इधर उधर चले जाते हो तुम लोग. पॉजिटिव भी सोच सकता है ना बंदा. दोस्तों में होता है, फ्रेंड्स में होता है कि यार मुझे ये नोटिस क्यों नहीं कर रही, यानी मेरा मूड खराब है, अभी तक इसने नहीं पूछा, मेरा मूड खराब ही होता है ना. होता है ये. अच्छा, इसमें गर्ल्स ज्यादा होती है बेचारी. बॉयज हम तो व्हाटएवर वाला सीन होता है, जलील होते हुए बड़े होते हैं, तो हमें इतना फील नहीं होता. लेकिन लड़कियों का होता है नॉर्मल पे कि यार आपने नोटिस नहीं किया, या मेरा मुंह इतने देर से बना हुआ, तुमने पूछा तक नहीं मेरा मुंह क्यों बना हुआ है. ये होता है नॉर्मल तो गर्ल्स में. तो अब इंटरफेरेंस का मामला ये होता है. इधर देखो भाई, हम हर किसी को इंटरफेयर करने की इजाजत देते भी नहीं, और ऐसा भी नहीं कि हम इंटरफेयर करें नहीं कोई भाई, कुछ को हम चाहते हैं कि वो इंटरफेयर करे.
लेकिन इंटरफेरेंस की ना कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे अगर हम भी अपनी इंटरफेरेंस की बात करें तो हम चाहेंगे वो हमारा पक्का दोस्त हो भाई, वो हमें अंडरस्टैंड करता हो। कि कुछ कंडीशंस होती है, हर बंदे की अपनी अपनी कंडीशन होती है, हमारे लेवल के मुताबिक हो, हमारे लेवल के मुताबिक हो, हमारा उसके साथ माइंड मिलता हो। अगर ये सारी चीजें होती हैं तो बॉन्ड बन जाता है, एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, एक अच्छी दोस्ती बन जाती है। तो आप जैसे अब आप ना किसी से दोस्ती करते हुए क्या क्या देखते हैं, उसमें दोस्ती करते हुए उसमें क्या क्या देखते हैं, या आपकी कंडीशंस हो गई। हर जगह कंडीशंस क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो वैसी लाइट भी ना इंटरफेरेंस ऐसा नहीं है, करती नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हर एली मेली लाइट से कर लेती है कि आओ इंटरफेरेंस करते हैं चलो, ऐसा नहीं है। लाइट की भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, समझ रहे हो? जो तुम लोग समझो, लाइट की भी कंडीशंस हैं। लाइट भी हर किसी से इंटरफेरेंस नहीं करती। अब लाइट की पहली कंडीशन सुनो। लाइट का सबसे पहला मामला वही है जो इंसानों में भी मसला है विचारों में। लाइट इंटरफेरेंस करती है अगर मोनोक्रोमेटिक हो। अब आप कहेंगे क्या इसमें इंसानों वाली क्या हरकत हो गई, मैं बताता हूं। मोनोक्रोमेटिक का मतलब पता है क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सेम कलर। सेम कलर वाली लाइट सेम कलर वाली लाइट से क्या करेगी, इंटरफेरेंस करेगी। ठीक है, वो क्या है, वो होता है ना वहां पे रेसिस्ट, ठीक है ना, रेसिज्म होता है ये कि भाई ब्लैक व्हाइट, बायो मालिक में ना अगर बिलफर्ज किसी को काला बोल दिया जाए, ब्लैक बोल दिया जाए, हत्या कि वो ब्लैक होगा, आपने बोल दिया ना ब्लैक, तो वो ऐसे करके इधर बोलेगा, हेलो यू सेड मी ब्लैक, एम आई ब्लैक, हत्या कि वो होगा ब्लैक पूरा, लेकिन वो फड्डे होने शुरू हो जाते हैं वहां पर, मारते पकड़ के कि ये इन्होंने क्या कर दिया, रेसिज्म कर दिया। ठीक है, हमारे यहाँ तो चलते फिरते लोग गोरे को भी बोल देते हैं काला, वो बेचारा सुनता रहता है। तो पहली बात क्या है, लाइट क्या कहती है, लाइट ये नहीं कहती, लाइट कहती है मैं इंटरफेरेंस करूंगी। लाइट क्या कहती है, इंटरफेरेंस। लेकिन देखो मैं ना रेड कलर की हूं, मुझे तो चाहिए रेड कलर वाला। इसी तरीके से मैं ग्रीन कलर की हूं तो मुझे चाहिए, इसी तरीके से जो मेरा कलर वही होना चाहिए अगले का कलर, यानी दोनों के कलर एक जैसे होने चाहिए। समझ आ रही बात? दोनों के कलर एक जैसे होने चाहिए तभी इंटरफेरेंस होगी, अदरवाइज इंटरफेरेंस नहीं होगी। ये पहली बात है। तो लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। रेड लाइट से इंटरफेरेंस करेगी, ब्लू से ही करेगी, इंडिगो से ही करेगी। सिंगल कलर लाइट होनी चाहिए। दूसरी बात, इधर देखिए, ये हो गई मोनोक्रोमेटिक। दूसरा, लाइट शुड बी कोहेरेंट। कोहेरेंट कहते हैं सेम फेस, एक फेस में लाइट होनी चाहिए। अगर एक जैसे फेस में लाइट नहीं है तो वो कभी आपस में मिल नहीं सकती। अगर सेम फेस है, सेम सोर्स है, तो लाइट इंटरफेरेंस करेगी, अदरवाइज लाइट बोलती है भाई प्लीज मैं इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, मुझे माफ करो। ठीक है। तीसरा, टू लाइट वेव्स शुड हैव सेम इंटेंसिटी। आप कहेंगे व्हाट इज मीन बाय इंटेंसिटी? देखो ना, इंटेंसिटी का मतलब ये है, एक लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, एक लाइट की इंटेंसिटी क्या है, कम, तो क्या मिल पाएंगी दोनों एक दूसरे से? नहीं, एक आगे निकल जाएगी, एक पीछे रह जाएगी। दोनों की इंटेंसिटीज एक जैसी होंगी तभी वो क्या कर पाएंगी, इंटरफेरेंस कर पाएंगी, मिल पाएंगी, अदरवाइज उनका मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फोर्थ और फिफ्थ जो पॉइंट है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे चैप्टर नंबर, ये यूनिट नंबर जो सभी 13 में, ख्याल से यूनिट नंबर 13 में जितने अभी टॉपिक चलेंगे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आएगा, माइकलसन इंटरफेरोमीटर आएगा, न्यूटन रिंग आएगा, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आएगा, सारे टॉपिक्स में ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट यूज होगा। तवज्जो से सुन लो। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की फोर्थ कंडीशन है कि पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होना चाहिए। तवज्जो रखिएगा, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो जो पाथ डिफरेंस है वो एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए। आप कहेंगे क्या एन क्या है यहां पर? एन का मतलब कोई भी नंबर है, वेयर एन इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। एन कोई भी क्या हो सकता है, नंबर हो सकता है। एन लैम्डा का मतलब है कि वेवलेंथ का सिंपल मल्टीपल होना चाहिए, 1 ऑफ वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए पाथ डिफरेंस। अब आप कहेंगे पाथ डिफरेंस क्या है? देखो, मिलते वही है जिनमें डिफरेंस हो। दो वेव्स हैं, उनके दरमियान पाथ डिफरेंस, वर्ड से भी समझ में आ रहा होगा, पाथ डिफरेंस, दो वेव्स के दरमियान जो फर्क है वो होगा तभी तो वो इंटरफेरेंस करेंगी। अब वो जो फर्क है
वो कितना हो तो कौन सी इंटरफेरेंस होगी, ये यहां पे बता रहे हैं। अगर वो इंटरफेरेंस लैम्डा के बराबर है, यानी जो लाइट की वेवलेंथ है उसी के बराबर है, या वेवलेंथ का सिंपल मल्टीपल है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, यानी कि लाइट बढ़ जाएगी। और अगर बिल्फर्स उनके जो पार्ट डिफरेंस है वो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी कि n प्लस हाफ लैम्डा के बराबर है। यहां पे n अगेन नंबर है, तो मेरा बेटा याद रखिएगा कि फिर कौन सी इंटरफेरेंस होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो कुल मिला के बात यह है कि कितनी कंडीशंस हुई, 5। लाइट शुड बी कोहेरेंट, लाइट शुड हैव for constructive interference path difference should be n lambda, and for destructive interference path difference should be n plus half lambda, where n is equal to कोई भी नंबर। मुश्किल तो नहीं है। लिखो फॉलोइंग आर द कंडीशंस, लिख लिया। पहला पॉइंट लिखो, लाइट शुड बी मोनोक्रोमैटिक। 5 कंडीशंस है जो लिखेंगे हम बैक टू बैक। फर्स्ट कंडीशन लिखो, लाइट शुड बी मोनोक्रोमैटिक। जल्दी जल्दी लिखिए, लाइट शुड बी मोनोक्रोमैटिक। लाइट शुड बी मोनोक्रोमैटिक ना, इंटीग्रल मल्टीपल है, तमाम के तमाम जो नंबर्स होंगे सीधे सीधे, ठीक है। पॉइंट्स में ये वाले आ गए ना, प्लस हाफ है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट्स में आएगा ये वाला, यानी पॉइंट्स में अगर है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और अगर होल नंबर, इसको क्या कहते हैं, इसको जो होल नंबर कहें या प्रॉपर नंबर करें तो उसको क्या कहेंगे, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। खैर क्या कह रहा था मैं, लाइट शुड बी मोनोक्रोमैटिक। आगे ब्रैकेट में लिख लो सेम कलर, ब्रैकेट में लिख लो सेम कलर। अगला लिखो, लाइट शुड बी कोहेरेंट। लाइट्स शुड बी कोहेरेंट, लाइट्स शुड बी कोहेरेंट। आगे लिख लो ब्रैकेट में सेम फेस। थर्ड लिखो, लाइट शुड हैव सेम इंटेंसिटी। 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 अगला लिखो, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस path difference should be integral multiple of for constructive interference path difference should be integral multiple of wavelength, integral multiple of wavelength। नीचे ही लिख लो PD इक्वल टू n लैम्डा, ब्रैकेट में ये भी लिख लेना, मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, उसके नीचे ये लिख लो, ये यहां से यहां तक PD इक्वल टू n लैम्डा वेयर करके ये लिख लिया। फिफ्थ पॉइंट लिखो, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस शुड बी, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर फिफ्थ पॉइंट, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस शुड बी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, ODD, ऑड, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल पाथ डिफरेंस शुड बी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, पाथ डिफरेंस शुड बी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। मैं उसके नीचे मैथमेटिकली करके ऐसे डायरेक्ट लिख लिया, ये लिख लीजिए। यहां पर आके हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स वाला टॉपिक क्या होता है, खत्म होता है। इसके बाद एक बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक, वो वही इंपॉर्टेंट है असल में, स्टार्ट होगा, जिसका नाम होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होगा। हेडिंग डाल दीजिए इस टॉपिक की, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यंग डबल स्लिट
एक्सपेरिमेंट हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जिस दिन पढ़ाऊं उसी दिन याद कर लीजिएगा। उसका रीजन ये है कि हद से ज्यादा मुश्किल टॉपिक भी है, इंपॉर्टेंट भी, और डेरिवेशन है, काफी लंबी डेरिवेशन है और बहुत मुश्किल टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज। अच्छा, कल मैं लंबी क्लास ले लूं? कल एक काम करो, कल तुम लोग सारे के सारे ना, कल वेडनेसडे है ना, कल लेकिन तुम लोग लूंगा तो शाम में ही। क्या कह रहे हो? कल टेस्ट है, लेकिन सेकेंड ईयर की ना, मैं मैसेज कर दूंगा। वैसे हो सकता है कि तुम लोग की क्लास जैसे अभी है ना, इसके बाद जैसे लाइक जो है कल कोई और क्लास तो नहीं है मेरे अलावा, तो बस मैं टाइम स्केड्यूल सेंड करवाता हूँ तुम लोगों को। ग्रुप पे तो सारे मौजूद हो ना। कल जो है क्लास होगी वो 1.5 घंटे की होगी, ताकि हम कल ही यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पूरा टॉपिक क्या कर लें, वाइंड अप कर लें। नहीं, क्लास यही होगी 5 बजे 6 बजे, इसी तरह से लेट होगी मतलब, ठीक है।